Hello, my dear students. Welcome to my channel, Talent Classes, the Castle of Knowledge. I hope you all enjoyed your vacations, and now it's the time to get back to studies. So, let's begin with the first chapter of Maths, Class 10, Chapter 1, Real Numbers. Shall we start? Okay. Chapter 1, NCERT book, Class 10, Real Numbers. Let's start with the definition of real numbers. What are real numbers? So, if you recall, in lower grades like fifth grade, you learned about natural numbers. Then in the next grade, you learned about whole numbers. Then in sixth grade, integers they were introduced. After integers, in seventh grade, they introduced rational numbers. Then recently in ninth grade, irrational numbers were introduced, right? See, बाकी सारे numbers याद नहीं भी हों तो irrational तो like you have done in ninth grade only and it's been only 2-3 months कि हमने 9th क्लास को छोड़ा है. So irrational numbers I suppose कि आप सबको आता है. Let's start with natural numbers. Natural numbers start from 1, 1, 2, 3, 4. Like if you will count something, you will start your counting with 1. So always remember natural numbers are used for counting. 1, 2, 3, 4 like this. Whole numbers, just you add 0 in the class of natural numbers, in the group of natural numbers, you just add 0, then this is a set of whole numbers. Now, if you include negative numbers also to the group of whole numbers, like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on both the sides, they can be, like there are many numbers, unlimited. Then comes rational numbers. Rational numbers, a very simple definition, the numbers which are in the form of P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers. And very important thing, सबको याद आ रहा होगा, where P and Q are integers, and yes, Q is not equal to 0. This is very important. Q is not equal to 0. And remember in maths, denominator can never be 0. कभी भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, so that number is not defined. वो infinity हो जाता है and that is not defined. So it's very important that when you write the definition of rational number, you should mention this thing, that P and Q are integers, और इससे भी ज़्यादा important ये बताना है कि Q is not equal to 0. For example, you can take any number 1 by 2, 3 by 4, all the fractional numbers. Then comes irrational numbers. Irrational numbers, root वाले numbers, right? So √2, √3, √5. √4 क्यों नहीं लिखा मैंने? √2 is irrational, √3, √5. Why not √4? Because √4 is a perfect square. And being a perfect square, you will write the square root of 4 is 2. And 2 is a natural number, whole number, integer rational number, but not irrational number. √4 is 2. अब 2 को तो हम irrational नहीं बोलेंगे. So if inside the root you have perfect squares, perfect cubes, and so on, then those numbers are not irrational numbers. Those are rational numbers. So only those numbers which cannot be written as a whole number by eliminating the root, they'll remain in root. And if you will find their value, the value will be non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating. Okay, so irrational numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating, and they cannot come out of the root as whole number or integer. And all these numbers together are known as real numbers. ये सारे नंबर मिला के ये सभी रियल नंबर्स हैं. So real number can be any of this kind. अच्छा, अब सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स होते हैं तो what's the need to study them? जब हमने सभी नंबर्स पढ़ लिए तो why we have given a specific name real numbers? क्या कोई नंबर्स अनरियल भी होते हैं? So yes, if we have real numbers, so we have on the other hand imaginary numbers also.
We don't have to deal with them, but yes, imaginary numbers also exist in our maths. For example, if I ask you, what is the square root of -1? Square root of -1. What would you say? Square root of negative numbers is not defined. Square root of negative numbers is not defined. Because there is no number of which the square is -1. If I square -1, what I'll get? -1 times -1. -1 into -1 क्या आने वाला है? 1. इसका मतलब जब हमने -1 को स्क्वायर किया तो 1 आ गया. -1 का स्क्वायर 1. यानी कि कभी भी -1 नहीं आएगा. देयर विल बी नो नंबर जिसको हम स्क्वायर करते हैं एंड यू गेट अ नेगेटिव नंबर. इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होता ही नहीं है. So this number is not defined. We call these kind of numbers imaginary numbers. You will study these in 11th grade in detail. So don't worry. So far in this class, we have to discuss only about real numbers. Okay, let's move on. You can read all this. Fundamental theorem of arithmetic. This is very simple. Fundamental theorem of arithmetic. If I give you some number, any number, suppose like let's take 52. And I ask you, write 52 as a product of its prime factors. What you will do, you all know prime factorization from very lower classes. हम इसको 2 से divide करेंगे, 2 से divide किया, so this is 26. Once again, it's an even number, 2 से divide करते हैं, we got 13, and 13 is a prime number, so we'll divide it by 13 only. Now we can simply say that 52 can be written as 2 times 2 times 13. 52 जो है वो इन तीन numbers का product है. And this is a unique, like these pair of these group of numbers is unique. ये वाला जो अरेंजमेंट है, this 2 times 2 like 2 square times 13, ये यूनिक है. किसी और नंबर को हम इन्हीं फैक्टर्स से डिफाइन नहीं कर सकते. दैट मींस एवरी डिफरेंट नंबर हैज इट्स डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन. So fundamental theorem of arithmetic says that any number can be written as a product of its prime factors. Then comes the uniqueness of fundamental theorem, which says that this order is yeah, you can read this somewhere. It's written that this prime factorization is unique. Okay, here I got. The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors. Like order can be different. You can write 13 times 2 times 2. Order may vary, but this prime factorization is unique for all natural numbers. Like किसी और natural number का यही prime factorization नहीं हो सकता. So this is fundamental theorem of arithmetic कि किसी number को हम उसके prime factors में लिख सकते हैं और वो prime factorization unique होगा. This is the property of fundamental theorem of arithmetic. Okay? प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आता है, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं कह रहे हैं. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत पहले से आता है. बस वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर कोई नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हर नंबर के लिए यूनिक होगा, डिफरेंट होगा. नाउ एग्जांपल 1, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. Consider the numbers 4 to the power n, where n is a natural number. Consider the numbers 4 to the power n. Numbers 4 to the power n. See, they are not saying consider the number. Consider the numbers because 4 to the power n, n is a natural number, and 1 होगा तो 4 की power 1 हो जाएगी, and 2 4 की power 2. In this way, you are going to get different numbers for different powers. उनका question ये है, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. क्या कोई ऐसी n की वैल्यू होगी जिस पर 4 की पावर n 0 पे एंड होता हो, जिस पे 4 की पावर n 0 पे एंड हो जाए? क्या कोई n की ऐसी वैल्यू होगी? लेट्स चेक. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर किसी की भी पावर को या किसी भी नंबर को 0 पे एंड होना होता हो तो उसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए? लाइक मुझे चाहिए कि मैं किसी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करूं और एंड में आ जाए 0. उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पास 10 हो. लाइक आई वांट 40 एंड आई हैव 4 ऑलरेडी, तो मुझे उसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट 4 के खुद के पास तो 2 है,
जिनके पास ऑलरेडी 2 होता है उनमें अगर हम सिर्फ 5 भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें 10 मिल जाएगा। लाइक हम इवन नंबर्स में सिर्फ 5 भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 आ जाता है। इसका मतलब 2 और 5 दोनों बहुत जरूरी हैं। वी नीड 2 and 5 बोथ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर टू गेट 10। अगर किसी नंबर को 0 पे एंड कराना है तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों नंबर्स होने चाहिए। बोथ द नंबर्स शुड बी देयर इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स कम बैक टू 4 to the power n। यहां अगर मैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूं तो आई गेट 2 times 2। एवरीवन नोज 4 is 2 squared and one n is there outside, so this is 2 to the power 2n, 2 to the power 2n, right? अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमें केवल 2 ही मिला। only 2 is there as the prime factor of 4 to the power n। to end this number at 0 there should be 5 also। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी आना चाहिए था, तब जाके ये 0 पे एंड होता, क्योंकि 2 तो हमारे पास है, हमें नीड है 5 की। बट 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पॉसिबल ही नहीं है ना? बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम की 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर है तो वो यही होगा, इसके अलावा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके पास कभी भी 5 नहीं होगा, इसीलिए कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। वेरी सिंपल। अब इसको अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं एक बार। लाइक लेट्स चेक व्हाट दे आर राइटिंग। इफ द नंबर 4 to the power n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5, है ना? अगर इसे 0 पे एंड कराना था तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए था। 5 से डिविजिबल होने का मतलब that the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime 5। 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए था। This is not possible because 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n। So the only prime in the factorization of 4n is 2। एक ही नंबर है 2। So other primes, so the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4n। 2 के अलावा यहाँ पर कोई और प्राइम नहीं है। So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ऐसा कोई n नहीं होगा जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर एंड हो जाए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन and this is frequently asked in your exams frequently। but वो 4 की पावर n नहीं होगा, it can be like कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? So let's come to example number 2। अब ये तो हमने बहुत पहले सीख लिया था ना लोअर क्लासेस में, 5th 6th में हम एलसीएम एचसीएफ करना सीख जाते हैं। अभी ये 10th में हमें फिर से सिखा रहे हैं बिकॉज दे आल्सो नो कि बच्चे भूल गए 4-5 साल में, है ना? तो फिर से सीख लेते हैं। 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही आसान है, मेरे करने से पहले आंसर्स आ गए होंगे तुम लोगों के। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो जिनको आता है इट्स वेरी गुड, जिन्हें नहीं आता है एक और बात समझेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, अभी 3 तो प्राइम नंबर है 1, ठीक है? दैट मीन्स 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 times 3। द सेम प्रोसेस विल रिपीट विथ 20। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे 10, 10 अभी भी इवन है, फिर 2 से स्टार्ट किया 5 आया, फिर 5 से किया तो 1 आ गया। दैट मीन्स दिस इज 2 times 2 times 5। दोनों की प्राइम फैक्टर्स रेडी हैं। नाउ व्हाट वी नीड इज एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालेंगे। Okay, let's find HCF of 6 and 20। HCF means highest common factor। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर कॉमन है जो दोनों में है? 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो यही कॉमन है और यही हाईएस्ट है। कॉमन फैक्टर एक ही है तो बस दिस इज द ओनली नंबर व्हिच इज कंसीडर्ड एज HCF। Now to find LCM। Now LCM is lowest common multiple। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन है ना वो तो लिखना ही है, कॉमन वाले को तो लिख लो। उसके बाद जो अनकॉमन है उन्हें भी एक एक बार लिख लेते हैं। तो 3 लिखा हमने, कॉमन वाला एक बार, यू डोंट नीड टू राइट टू टाइम्स, कॉमन वाले को एक ही बार लिखा। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको हम एक एक बार सारे नंबर्स को लिख देंगे। लाइक इसका 3 लिख दिया, इसका 2 और इसका 5। मीन्स ये वाला 2 सिंगल टाइम, देन 3 times 2 times 5। दिस इज LCM। 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 times 5 is 60। दिस इज HCF। अब यहाँ एक और चीज हमें समझनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इसका कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड
LCM. Let's verify. Let's check कि ऐसा सच में होता है कि नहीं. So LCM times HCF. LCM times HCF. HCF is 2. LCM is 60. ये आ गया 120. LCM और HCF को इंटू किया 120 आया. Now let's multiply the numbers. हमारे दो numbers हैं 6 और 20. 6 times 20 is again 120. So verify. So notice that this is very important result. Note down. HCF times LCM is product of two numbers. इसका यूज करके वो हमसे पूछते हैं like sometimes they'll give you LCM and the two numbers and now they'll ask you कि HCF निकालो. तो यहाँ पर हमें HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना होता है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके HCF या LCM निकालना रहता है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3 वो इसी पर बेस्ड है. Okay, let's do example 3. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. अच्छा पहले बोला है HCF निकालो by prime factorization method. उसके बाद देखो what they are writing and hence find their LCM. Hence find मतलब कि HCF निकालने के बाद LCM भी निकाल दो. तो they don't mean कि हमें फिर से prime factorization करना है. Once you are finding HCF, no, so you're done with prime factorization. After that, you have to use this result to find LCM. So let's do prime factorization of 96. चलो जिनको आता है फास्ट क्विकली यू हैव टू सॉल्व. 2 से किया 48, 2 से 24. मेरे निकालने के पहले आ जाना चाहिए. 2 से 12, 6 फिर 2 से किया. You just have to keep on dividing until you get 1. Right? 2, 2, 2, 2, 3. This is of 96. दूसरा नंबर है 404. With 2, 202. With 2 it's 101. अरे बाप रे 101 किसके टेबल में आएगा चेक करो. 7 में नहीं, 8 में नहीं, 7 में नहीं आएगा, 13 में no. Let's consider it a prime number. 1011. चलो अब हम निकालेंगे इसका HCF. HCF means what? Common factors. अभी दोनों के common factors जरा चेक करते हैं. I'll prefer writing this way. 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 3. है ना? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 2 and then a 3. Okay. And 404 is 2 times 2 times 101. HCF is the highest common factor. तो common factor ये भी है, ये भी है. Highest consider करें तो दोनों का product हो जाएगा. इन दो 2 में से हमने एक 2 को लिखा है कॉमन. इन दो 2 में से हमने दूसरे 2 को कॉमन लिखा है. तो 2 times 2 which is 4. 4 is HCF. ठीक है, दोनों के फैक्टर्स हमने लिख लिए पहले. उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट करके हमने HCF निकाल लिया. Now the HCF is done. So let's find LCM with this formula. Very easy. Formula is HCF times LCM equals to product of two numbers. HCF times LCM. We don't know. LCM is LCM. So HCF times LCM is product of two numbers. The two numbers are 96 times 404. इसके बाद हम क्या करते हैं? We'll divide both the sides by 4. 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा. 4 से इसको डिवाइड किया 101. मल्टीप्लाई करो जल्दी से. 101 इंटू 96 फर्स्ट क्या आएगा? 9696. This is the LCM. Okay, किस किस का करेक्ट है? We'll check. Let's start. Example 4. Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. Prime factorization का यूज करके हमें इनका HCF और LCM दोनों निकालने हैं. ठीक है, तो हम तीनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 6, 72 और 120. 6 के प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, 6 डिविजिबल है 2 से. 6 डिवाइडेड बाय 2 3. 3 से डिविजिबल है. 3 डिवाइडेड बाय 3 1. तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं 6 के, 2 एंड 3. फिर हम देखेंगे 72. 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. इवन नंबर है 72. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे. 72 डिवाइडेड बाय 2 is 36. 36 divided by 2 18. 18 divided by 2 is 9. 9 2 से नहीं जाएगा. 9 3 के टेबल में आता है. तो 3 divided by 9 divided by 3 is 3. और फिर 3 divided by 3 1. तो ये फैक्टर्स हो गए 72 के. We'll write like this. 2 times 2 times 2
टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब आता है 120। अब हम 120 के फैक्टर्स निकालेंगे। 120 इज अगेन एन इवन नंबर, 2 से किया 60, अगेन 2 30, अगेन 2 15। अब 15 2 में नहीं जाएगा तो 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 टाइम्स इज 15 एंड देन 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1। तो ये फैक्टर्स हो गए 120 के। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए बहुत ही इजीली। अब हम पहले निकालेंगे HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है वो हमें निकाल लेने हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर 2 इज कॉमन इन ऑल द नंबर्स, सभी में हमें ये 2 दिख रहा है कि अब बाकी 2s को हम देखें तो वो 72 और 120 के पास तो है, बट 6 के पास वो 2s नहीं है। सो ओनली 1 2 वी आर गोइंग टू टेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स में 3 है, 72 में भी 3 है, 120 में भी 3 है। तो यहां पर हमने ले लिया 3 कॉमन। उसके अलावा यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। सो 2 टाइम्स 3 6 इज द HCF। पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमें इकट्ठा करना है। कॉमन मतलब तीनों में कॉमन, राइट। अब LCM। LCM में क्या होता है, जो कॉमन है पहले तो वो लिख लो, जिनको हमने अभी HCF में भी लिया था। एक था 2 और एक 3, तो ये हम ऑलरेडी ले चुके। इनके अलावा जो बचे हैं उनकी भी हम पेयरिंग करेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर्स थे 2 एंड 3, वो दोनों आ चुके हैं। अब हम 72 और 120 को देखेंगे, यहाँ पर क्या छूट गया। LCM में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स तो हमने ले ही लिए, अब जो अनकॉमन है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, उन्हें भी हमें लिखना है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो 2 है ये इन दोनों के पास है, इसको हमने नीचे उतार लिया। फिर ये 2 ये भी इन दोनों के पास है, इसको नीचे उतार लिया। अब इनकी भी पेयर बन गई, लेकिन ये 3 और ये 5 इनकी कोई पेयर नहीं है, तो इनको भी हमें लिख देना है। लाइक जो पेयर्स में थे उनको तो हमने ले ही लिया पहले, उसके बाद जो पेयर में नहीं थे उन्हें भी एक एक बार लिखना है। दिस विल गिव यू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 times 3 6, 6 times 2 12, 12 times 2 24, 24 times 3 is 24 times 3 72, 72 times 5 360. Okay, so LCM here is 360. क्लियर। LCM में पहले हमने कॉमन फैक्टर्स लिख देने जो तीनों में कॉमन है, फिर जो 2 में कॉमन है, और फिर जो बिल्कुल कॉमन नहीं है वो भी, यानी सारे नंबर्स को बटोर के हमें एक जगह लिखना है। दैट विल बी LCM. Okay, if example 4 is clear, let's proceed to exercise 1.1. From NCERT, Chapter 1, Real Numbers. We completed all the 4 examples, example 1 to 4. And now let's start exercise 1.1, NCERT class 10th. Exercise 1.1, question number 1. Express each number as a product of its prime factors. As a product of its prime factors. In all the examples we did this. Let's complete it very fast. So 140, this is an even number, so it will be divided by 2. So 70, again it will go by 2, 35, then by 5, it will give you 7, 7, 1. Now how can you write 140? 140 equals to 2 times 5 times 7. This is the prime factorization of 140. We wrote 140 as a product of its prime factors. This was question number 1. Let's do question number 2. 156, 156. Again 156. 6 is an even number. That means 156 is an even number. Let's divide it by 2. So 7, 8. Once again by 2. So 3, 9. Now 39, it will go by 3. So when you divide 39 by 3, it will give you 13. 13 is a prime number. So 13 divided by 13 is 1. That means 156 as a product of its prime factor is written as 2 times 2 times 3 times 13. Okay. Second. Now let's do question 3. 3, 8, 2, 5. Now see, its units digit is 5. If its unit digit is 5, it will definitely go by 5.
So let's start dividing it by 5. So this is 38. We'll write 7 because 35. Then 32. So 6 for 30 and 25, 5. See, if you face difficulty in dividing orally, you can also do like this. 5 7s are 35. 8 minus 5 is 3. 2, you bring down 2. Then 5 6 are 30. 2, bring down 5. And 5s are 25. So you can always do by this method. You should not hesitate, like you always have to do orally. No. You can practice by writing also. Okay, 765. Once again, units place is 5. Let's divide it by 5. So 1, then 2 left, 26. So 5 times is 25. Then 1 is left, then 3. Now see, the prime factorization should go by order. Like first you should use a small number, 2, then 3, like this. But because the units place was 5, I started with 5. Otherwise, we have to think whether it will go by 3 or not. So I just started with 5 and now I got 153 and you can simply see that it will go by 3. So 15 comes 5 times and 3 comes 1 time. Once again, it will go by 3. So 1 and then 21, it's 17 and 17, 1. Now, when you will write its prime factorization, you should write the numbers in order. So first you should write 3 times 3 times 5 times 5 times 17, like this. So question 1, 2, 3, they are there on the screen. You can copy down. Okay, let me clear all the 3 questions and we'll start 4th and 5th. Okay, 4th, it's 5005. Let's divide it by, once again you can see that the units digit is 5. So we'll start dividing it by 5. So it's 1001. Now see, this is a palindrome number, like ulta seedha ek saman, no? Like isko ulta bhi likhenge to it's same. So these kind of numbers are known as palindrome. Like if you'll reverse it, it's 1001. So palindrome numbers, they usually they are divided by 11. They are divisible by 11. So 100, you can divide like this. 11, 9 times is 99. Subtract, you'll get 1, bring 1 down. So 11 ones are 11. So 91. So we'll write here 91. Now 91. For this, you should know the tables. 17 will divide 91. Let's see. 17, 91 we want. No. Sorry, 13 will divide. 3 7s are 21 and 7 ones are, yeah, okay. 13 will divide, not 17. So in the table of 13, 91 will come 7 times. So yes, we can then write. Then we can write 7, 13, 13, 1. So this all you can do by practice. You have to use hit and trial method. You have to hit several numbers and where you get success, there you have to go. So now if I summarize all the factors together, so I'll start with 5, then 7, 11, 13. This is the prime factorization of 5005, 5005. Now comes question number 5, 7429. Now see, it's a big number and it's not even, so we can't start with 2. Now to check whether it will go by 3 or not. So you all must be knowing divisibility test. 7 plus 4, 11, 11 plus 2, 13, 13 plus 9. No, it will not go by 3 because 13 plus 9 is 22 and 22 is not divisible by 3. Therefore, this number is not divisible by 3. Then 4, it will not go because it will not go by any even number. And 5 also not. 7, we should check. There is no divisibility test for 7. Let's check by dividing. So no, see 7, 42. 7 is divisible by 7. 42 is divisible, but 9 is not. So leave 7. 11, we have a divisibility test for 11. Like add these numbers alternatively. 9 plus 4, it's 13. 7 plus 2, it's 9. And 13 minus 9, if it's 0 or a multiple of 11. If it's 0 or a multiple of 11, then it will go by 11. But this time it's not 0, it's 4. 13 minus 9 is 4. So it will not go by 11. So let's check 13. We should divide it by 13. So 65. We should do like this now. 13. 13 5s are 65. So 14 minus 5 is 9. 2. 13 7s are, we did now, right now. Oh, no, it will not go by 13. So after 13, we have to directly come to 17. So 7, 4, 2, 9, let's divide it by 17. So 17, 34, then 4 are 68.
14 minus 8 is 6, 62. 17, 3 times, it's 51. And it's 119. I think it will come in 7 times. 7 sevens are 49. Yes. It's 7 times 119. So when we divide it by 17, we get 437. So this way, like you have to make the tables if you don't remember all the tables. Now 437. Let's check. Let's check again by 17. So 17 times 2 is 34. 13 minus 4 is 997. No. So not by 17. Now we should come directly to 23. I'm checking all the prime numbers because see, after 17 I have 18. 18 is an even number. Then yes, we have 19. We should check by 19 also. All the prime numbers we'll consider. 19 times 2 is 38. 38, 76. No, 19 times 3 is 57. 14 minus 7 is 7, and here 1, then bring down 2. 19 times 9 is 171, I think, yeah, 171. So 19 times 9 is 171, 1 is left, bring down 9, and yes, 19 ones are 19. So 90, in the table of 9, 437, oh, what I'm doing? I'm dividing 7429 by 19. No, I was not supposed to do this. Well, if 7429 goes by 19, that means 437 will definitely go by 19. So let's take a second and divide it by 19. So 19 times 2 is 38. 13 minus 8 is 5. 57, 3 times. Okay, so all done. 23 is a prime number. So 1 time. So see, I'm also doing by hit and trial method. I'm just hitting a number. I'm just thinking of a number and just checking it, whether the number will go by this or not. So there is no particular method. You have to practice. Jitna practice karoge, utna you'll be perfect in it. Okay. So practice of exercise 1.1, chapter 1, real numbers, class 10, NCERT maths. Okay. Question is, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM times HCF is equal to product of the two numbers. We have to find out LCM and HCF separately. And then we have to verify this relation LCM times HCF is equal to product of two numbers. So let's start finding LCM and HCF of 26 and 91. Process is prime factorization method. So start doing prime factorization. 26 divided by 2 is 13. 13 divided by 13 is 1. Same process with 91, and 91 has come many a time in our like in the previous questions. So it goes by not by 3, it goes by 7, and it gives you 1, 3, 13, and then 13 times 1. So we are done with the prime factors of 26 and 91. Prime factors we have practiced a lot. You just have to keep on dividing until you get 1. So factors of 26 are 2 and 13. Factors of 91 are 7 times 13. Now we have to find HCF and LCM. Let's first find HCF. HCF means highest common factor. So if you observe, you will find that 13 is common in both the numbers. In the prime factorization of both the numbers, we have got 13. There is no other factor which is common. So 13 is the highest common factor. Now, LCM, as we have already learned, LCM means you'll first write the common factor, HCF, then the uncommon factors like 2 and 7 both. 2 and 7. LCM means least common multiple. The process of finding it is from the prime factorization of the numbers का जो prime factorization हमने निकाला है 26 का prime factorization 2 times 13, 91 का 17 times 30. Now here 13 is common. जो common है वो तो हमने लिख दिया. उसके बाद 2 is there जो कि common नहीं है. That we have to write. And then 7 is also not common. तो उसे भी हमने लिख देना है. Now 13 times 2, 26. 26 times 7. 7 6 are 42. 7 2 are 14 plus 4, 182. This is LCM. Now what we have to verify? LCM times HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. LCM is 182. HCF is 13. And the numbers are 26
and 91. Now you multiply and check whether the two numbers are same or not. So 182 times 13 is 2,366 and 26 times 91 is also same 2366. So we'll say verified. हमें वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. पहले हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, देन we did LCM times HCF equals to A times B. Let's try second part. Okay, second part is 510 and 92. Let's start prime factorization. 510 you divided by 2 because the last digit is 0, तो ये even number है. 2 से start करते हैं. 2 5 5. Then 255 it can go by 5, so 51. 51 to 3 से जाता है, तो 3 1s are and 17s are, and then it's 17. Similarly, do it with 92. 92 goes by 2, so 46. Once again by 2, 23, and 23 goes by only 23, so 1. Now, prime factorization of 510, you'll write like this: 2 times 3 times 5 times 17. And prime factorization of 92 is 2 times 2 times 23. Now, first we'll write HCF, which is highest common factor. So, only 2 is there, जो कि common है. So, HCF is 2. अब LCM. LCM is like highest common factor, we'll write a single time, and then uncommon factor. सबको एक बार लिख देंगे. So 3, 5, 17, 2 and 23. अब इन सबका हम करेंगे product. Let's do it. Okay, so the product of all these numbers is 23,460. Now let's verify. LCM times HCF is equal to product of two numbers. So 23460 times 2 should be equal to 510 times 92. Okay, so times 2 is okay. Similarly, 51 times 92, same, 46920. In this way, this formula is verified. LCM times HCF is A times B. I hope you understood both the questions. Similarly, you can do this third as homework. And if there is any doubt, you can write in the comment. Hello, dear students. Welcome to my class. This is question number 3 from exercise 1.1, chapter 1, real numbers. Let's start. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. क्या करना है हमें? We have to find LCM and HCF by prime factorization method. So we'll start by finding prime factors. Question number 1, 12, 15 and 21. Prime factors of 12 divided by 2. 12 divided by 2 is 6. 6 divided by 2 is 3. 3 divided by 3 is 1. So prime factors of 12 are 2 times 2 times 3. Now, let's do prime factorization of 15. Let's divide this number by 3. 15 divided by 3 is 5. 5 divided by 5 is 1. Now write the factors of 15 just below 12. Okay. 3 times 5. Now 21. 21 is divisible by 3. 3 times 7 is 21. 7 times 1 is 7. So prime factorization of 21 is 3 times 7. Now we're done with the prime factorization. Let's find HCF. HCF means highest common factor. So you can observe that 3 is the number which is common in all the 3 numbers. So 3 is the common factor which you can see in all the prime factorizations. So HCF is 3. Now LCM. LCM,
The common number you'll write, which is 3, and then the numbers which are not common. So 2 times 2 times 5 times 7. 3 times 2 is 6. 6 times 7 is 42. 420. So LCM is 420. So सबसे पहले हमको तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. उसके बाद जो कॉमन नंबर है वो HCF होगा. कॉमन नंबर जरूर नहीं है एक हो, कॉमन नंबर दो भी हो सकते हैं, तो उन सबका प्रोडक्ट हमें HCF में लिखना है. LCM में HCF के साथ साथ जो नंबर्स कॉमन नहीं है उनका भी प्रोडक्ट हो जाएगा. लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन. 17, 23 and 29. Like you can see, ये तीनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका HCF तो 1 ही होगा, बिकॉज 17, 23, 29 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर भी लाइक यू विल गेट 1 in 17, 1 in 23, 1 in 29, क्योंकि ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, दे आर प्राइम नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, 17 को लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 17 times 1, 23 को लिख सकते हैं 23 times 1, 29 को 29 times 1. तो देखा जाए तो सब में सिर्फ 1 ही कॉमन है. So HCF is 1 and LCM will be the product. 17 times 23 times 29. This product you can do, जो भी होगा वो उसका LCM होगा, right? Now third is 8, 9 and 25. Here also like numbers are not prime, but still I can observe that there is nothing common in 8, 9 and 25. Let's check. Prime factorization of 8 will give you 2 times 2 times 2. Prime factorization of 9 will give you 3 times 3. And 25 will give you 5 times 5 times 5. So there is nothing common. नहीं, यहाँ पर कुछ भी common नहीं है. When nothing is common, हम बोलेंगे कि HCF है 1. और LCM ऐसे cases में इनका product होता है. ठीक है? When there is nothing common in the prime factors, तो HCF is 1 and LCM is the product of the given numbers. Now 25 times 4 is 100. So 4 2s are, it's 200. 200 times 9. It's 1800. So LCM is 1800. Very quickly, let's multiply. 17 times 23 times 29. 17 times 23 times 29. You can do multiplication. So it's 11339. Okay, so all the three questions done. Let's summarize. Question was find the LCM and HCF of the following integers by prime factorization method. So 12, 15 and 21 उनको देख के लगा कि इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमने इनको फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करके इनके प्राइम फैक्टर्स को ऐसे अरेंज किया है. अरेंज करके जो नंबर्स कॉमन थे वो HCF होगा, और HCF के साथ साथ रिमेनिंग नंबर्स भी लिख दिए जाएं तो वो LCM हो जाता है. फिर सेकंड क्वेश्चन 17, 23, 29 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो HCF is 1 and LCM is the product of the three numbers. Similarly 8, 9 and 25, हालांकि ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बट स्टिल दे आर को प्राइम, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF होगा 1 and LCM is the product of the three numbers. Yes, this is question number 4, exercise 1.1, real numbers. Okay, given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM of 306 and 657. दो numbers का HCF given है, like when they write like this ना, that means इन दोनों numbers का HCF 9 है, और हमसे पूछा है LCM इन्हीं दोनों numbers का. Like if I write given, so they are giving HCF of 306 and 657 is 9. They want us to find LCM of 306 and 657. ये हमें निकालना. Now we have a very useful relation between HCF and LCM, that HCF times LCM is equal to product of two numbers. HCF times LCM is equal to product of two numbers. Now HCF is 9, LCM we don't know, तो LCM को हमने LCM ही लिखना है. Product of two numbers कौन से? 306 and 657. इनकी बात चल रही है इन दोनों numbers की. So 9 times LCM equals to 306 times 657. Now LCM is equal to 306 times 657 divided by 9. 9 times LCM ये है. LCM निकालने के लिए हम दोनों साइड 9 से डिवाइड कर देंगे. So this 9 will come down. Now 306 is divisible. Well, both the numbers are divisible. Yeah. So 9 ones are and 9 threes are 27. Then 3 is left. 36 comes 4 times. Now 657 times 34. Do it fast. 657 times 34.
22338. 22338. So this is the LCM of 306 and 657. 306 and 657. So whenever they give you HCF or LCM of the two numbers, either they'll give you HCF or LCM and they'll ask you one thing which is not given, so you have to use this relation. HCF times LCM is equal to product of two numbers. Hello dear students, welcome to my class. This is exercise 1.1. Question number 1 to 4 we have already done. Let's start question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. क्या कोई ऐसी पावर हो सकती है 6 की, लाइक n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पर 6 की पावर n का जो रिजल्ट हो वो 0 पर खत्म होता हो, यानी जिसकी यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 हो. फॉर एग्जाम्पल वो हमसे पूछ रहे हैं 6 की पावर में कुछ ऐसा नंबर हो सकता है क्या जिससे हमें जो नंबर मिले उसकी यूनिट प्लेस पर तो 0 ही हो, यूनिट प्लेस पर. ओके ओके, सो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं. दिस इज 6 टू द पावर n लाइक दिस. Now this all depends on the prime factorization of 6. अभी 6 के prime factorization पे depend करता है कि इसकी units digit क्या होगी, means 0 होगी या नहीं होगी. तो you all know prime factors of 6 are 2 and 3. तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 times 3 की power n. अब ये है 2 की power n, 3 की power n. अब किसी भी नंबर को 0 पे एंड कराने के लिए उसके अंदर होना चाहिए 10. अगर हमारे पास 10 होगा, लाइक इफ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ही वो 0 पे एंड हो सकता है. 10 के लिए जरूरी है कि उसके अंदर 2 और 5 हो. तो 2 तो हमारे पास है पर 5 नहीं है. एंड देयर इज यूनिकनेस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. लाइक अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 3 है तो 6 का कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. इसका मतलब इसके पास 5 तो कभी भी नहीं होगा, और अगर इसके पास 5 नहीं होगा तो ये 0 पे एंड नहीं होगा. तो समझ में तो हमको आता है, बट लिखेंगे कैसे, लेट्स चेक. ऐसे लिख दिया. अब हमें सिर्फ थ्योरी लिखनी है यहाँ पर. we know that prime factors of 6 are 2 and 3. To make the digit to make the number and add digit 0, it should have 2 and 5 as its prime factors. But 6 doesn't have 5 as its prime factor. So there is no value of n for which 6 to the power n ends at digit 0. ओके, 6 के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 3 हैं. किसी भी नंबर को 0 पे एंड कराने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है. 6 के प्राइम फैक्टर में 2 तो है पर 5 नहीं है, जिसकी वजह से ये 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा. दैट्स ऑल. Exercise 1.1, question number 6. Explain why 7 times 11 times 13 plus 13 and 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 are composite numbers. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये composite numbers हैं. अब composite numbers क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते हैं. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स
which do not come in the table of any number except for 1 and the number itself. यानी जैसे मैंने कहा कि 3 is a prime number, तो जब मैं 3 के फैक्टर्स लिखूंगी तो I would get only 3 and 1, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें 3 आता हो, तो 3 प्राइम है. 5 is also prime because the factors of 5 are 5 and 1, इसमें भी कोई और फैक्टर नहीं है. अब ये प्राइम नंबर्स हैं, तो जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, लाइक 4 के फैक्टर 4 और 1 के अलावा 2 और 2 भी होते हैं, लाइक 2 is also as a factor of 4, तो 4 कंपोजिट है. तो जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, वो प्राइम है, और जिनके इनके अलावा भी कोई फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं. सीधी सी बात, जो नंबर्स किसी के टेबल में आते हैं, किसी और नंबर के टेबल में आते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. अब हमें इसको ये प्रूव करना है. लेट्स शिफ्ट टू अदर स्क्रीन. ओके, यहाँ हम इसको प्रूव करेंगे. पहला नंबर है 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13. अब देखो, जब तक नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तब तक वो एक है, जहां प्लस लग गया वहां पर ये नंबर अलग हो गए ना, सेपरेट हो गए. ये प्लस 13 अलग है क्योंकि ये प्लस के बाद आ रहा है, और जितने भी नंबर्स हमने मल्टीप्लाई में लिखे हैं उन सबको हम एक ही कंसीडर करते हैं. यहाँ अगर देखें कि इन सब में लाइक 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 और ये 13 है, तो दोनों नंबर्स में 13 कॉमन है. इस नंबर को मैं एक मान रही हूँ और इसको भी एक, लाइक वो एक है वो एक है, दे बोथ आर सेपरेट, है ना. तो इस पूरे सेट में से 13 कॉमन है, तो यहां से जब 13 चला गया तो इसके पास बचा 7 और 11. अब प्लस आता है बीच में, प्लस इज अ सेपरेशन बिटवीन द टू पार्ट्स. प्लस के बाद फिर से 13 लिखा हुआ है, लेकिन 13 तो भी हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड आउट, तो 13 हमारा बाहर है, तो उसकी जगह बचता है 1. ठीक है. अब ये जो भी नंबर है ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, अभी तो छोटा सा नंबर है हमारा 7 टाइम्स 11 विच इज 77 प्लस 1 जो कि हमें 78 देगा, बट नो मैटर व्हाट इट इज, जो भी हो ब्रैकेट में हमें बॉदर ही नहीं करना है, बड़ा नंबर है छोटा नंबर है कुछ भी हो, बट जो ब्रैकेट के बाहर है हमें उससे मतलब है. ब्रैकेट के बाहर है 13. अब 13 टाइम्स तुम कुछ भी करोगे तो जो नंबर आएगा वो तो ऑलरेडी 13 का मल्टीपल होगा. लाइक 13 टाइम्स अभी ये हमारा 78 बन रहा है, 13 टाइम्स 78. तो अब 13 को जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा वो ऑलरेडी 13 का मल्टीपल होगा. अब इसका प्राइम फैक्टर 13 तो है ही सही, है ना. बाकी दो नंबर 1 और उसका खुद का फैक्टर वो तो होता ही है, उसके अलावा इसमें एक और फैक्टर हमें सामने दिख रहा है कि जो 13 है, तो ये तो हो गया कंपोजिट नंबर. सो वी कैन राइट दैट दिस नंबर इज 13 टाइम्स m, m यानी कुछ भी टाइम्स. सो दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म 13m, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर. सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 5. फिर प्लस के बाद नंबर सेपरेट हो जाता है, तो प्लस के जो पहले है वो पूरा एक ही नंबर है. इसके पास भी कॉमन फैक्टर देखो 5 है, दोनों दोनों पार्ट्स में, प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड. यू कैन ऑब्जर्व कि 5 आ रहा है, तो लेट्स टेक 5 कॉमन. 5 को हमने बाहर कर दिया. अब यहां बचता है 7 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 5. 5 को तो हमने बाहर कर दिया, 5 इज फैक्टर्ड आउट, तो 5 की जगह बचता है यहाँ पर 1. अब देखो ये जो कुछ भी है 5 का मल्टीपल है. इनसाइड द ब्रैकेट आई टोल्ड यू कि कितना भी बड़ा नंबर हो वी डोंट हैव टू बॉदर, ये जो कुछ भी है, ये जो भी है बाहर 5 है, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5. ये कुछ ना कुछ 5 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 5 टाइम्स हम जो भी करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल है, यानी इसका प्राइम फैक्टर हमारे पास 5 है ही सही. देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर. वेरी सिंपल. अब अगर एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और डिजिट्स को चेंज करते हैं तो डोंट बॉदर, प्लस के इस साइड देखो प्लस के उस साइड देखो, दोनों में से कोई नंबर कॉमन होगा, उस कॉमन नंबर को बाहर निकालो, ब्रैकेट बना के अंदर बची हुई चीजों को लिख दो, और जो बाहर वाला नंबर है उसका टाइम्स लिख दो. लाइक बाहर 13 है तो 13 टाइम्स m, 5 आया तो 5 टाइम्स n, जो भी सो इन सो नंबर होगा वो बाहर रखिए उतना टाइम्स n, एंड देन इट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर. थैंक यू. Hello dear students, now this is the last question of exercise 1.1. There is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. There's a circular path around the sports field. एक field है, उसके आसपास circular path है. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. इस फील्ड का एक राउंड लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, यानी अगर सोनिया ने यहां से शुरू किया तो आफ्टर 18 मिनट्स शी विल बी बैक to the same point after 18 minutes, while Ravi takes 12 minutes for the same.
रवि को एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं, तो वो 12 मिनट्स में यहां पहुंच जाएगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम पॉइंट, दोनों ने समझो यहीं से शुरू किया, सेम टाइम पर और सेम पॉइंट पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में भी गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना टाइम बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। सोनिया और रवि दोनों ने यहां सर्कुलर राउंड लगाना शुरू किया, दोनों ने सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर शुरू किया, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर शुरू किया। अब क्वेश्चन ये है कि वो दोनों फिर से कब मिलेंगे। तो 12 मिनट्स के बाद अगर हम देखें तो रवि यहां होगा, बट सोनिया को तो 18 मिनट्स लगेंगे। तो जब 12 मिनट्स पर रवि यहां होगा तो सोनिया कहीं पीछे होगी, अभी लाइक वो आ रही होगी वहां तक, बट रवि विल नॉट वेट ना, रवि आगे निकल जाएगा। सोनिया 18 मिनट्स के बाद जब यहाँ आएगी तो रवि आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि 12 + 6 18, तो 6 मिनट और हो गए ना रवि के लिए, तो रवि तो 6 मिनट बाद यहाँ सेंटर पे मतलब हाफ राउंड फिर से कर चुका होगा। क्योंकि सोनिया इज वॉकिंग स्लो, उसको 18 मिनट्स लग गई, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, तो रवि पहले सर्कल कंप्लीट कर लेता है, सोनिया फिर बाद में पीछे आती है, तब तक रवि और आगे आ जाता है। तो ऐसा करते करते वो दोबारा कब क्रॉस होंगे एक दूसरे से। ऐसे क्वेश्चंस में हम निकालते हैं एलसीएम। पता कैसे चले हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, क्योंकि ये तो भी एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में करने, कहीं एचसीएफ होगा कहीं एलसीएम होगा। तो इन शॉर्ट मैं अपने स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जो आंसर होगा वो इन गिवन नंबर से बड़ा हो सकता है तो एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा होता है या इक्वल होता है, इन दोनों नंबर से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। तो अब देखा जाए तो उसको 12 मिनट लगते हैं, उसको 18 मिनट, तो दोबारा जब वो मीट करेंगे तो डेफिनेटली 12 और 18 से तो बड़ा ही वो नंबर होगा, क्योंकि 18 मिनट्स तो ऑलरेडी पास हो चुके होंगे जब सोनिया ने एक राउंड लगाया होगा, बाकी के लिए उसको और ट्रेवल करना पड़ेगा। सो आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर देन 18 मिनट्स, तो यहाँ एलसीएम होगा। राइट, एचसीएफ हम कब निकालते हैं, जब हम कुछ अरेंज करते हैं, जब हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं किसी चीज का, लाइक वी आर अरेंजिंग बुक्स, वी आर अरेंजिंग स्वीट्स, लाइक बर्फी होती है उसको हम अरेंज कर रहे हैं के ऊपर, दैट इन दोस केसेस वी फाइंड एचसीएफ। वो क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट शीट। ओके, सो क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना, अगर एग्जाम में आता है तो यू शुड मेक अ सर्कल जस्ट टू शो कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नाउ यू राइट रवि टेक्स, रवि टेक्स 18 minutes to take one round around the circle. Oh, sorry. Ravi takes 12 minutes, sorry. Sonia takes 18 minutes to do the same. Now we'll find LCM of 12 and 18. LCM of 12 and 18. We'll do it by division process. 2 से divide करेंगे, 6 and 9. Again by 2, 3, 9. Then by 3, 1 and 3. Then again by 3, 1 and 1. This is known as division process of finding LCM. तो LCM हो जाएगा हमारा 2 into 2, 4. 4 3s are 12. 12 times 3 is 36. So your answer is they will meet again at the starting point after 36 minutes. That's all. Hello, dear students. Yesterday we completed whole exercise 1.1. Now we are going to start exercise 1.2. So let's revisit what are irrational numbers. Irrational numbers are of the form √2, √3, √5, which you have like studied in 9th class. So all those numbers which cannot be expressed as a rational number, can't be expressed as integers, okay, are irrational. If we talk about their decimal expansion, the decimal expansion of irrational numbers is non-terminating, non-repeating. They are non-terminating and non-repeating. Okay. For example, this is given 0.10110110 means there is no pattern so that we can use bar. कोई पैटर्न नहीं है कि हम उसके ऊपर बार यूज करें, है ना। नंबर्स कुछ भी होते हैं बट खत्म भी नहीं होते हैं, पैटर्न भी कुछ भी
और टर्मिनेट भी नहीं होना, ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये है बात डेसिमल एक्सपांशन की इनकी। नॉर्मली ये ऐसे दिखेंगे, √2, √3, √5, √7, √6। यहाँ पर हम √4 को इरेशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि √4 तो 2 होता है। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो एक होल नंबर है, एक इंटीजर है, इसीलिए √4 रैशनल है। वो नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होते हैं, वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना रहेगा कि √2 इरेशनल है, √3, √5 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। बिफोर प्रूविंग देम हमें थ्योरम 1.2 को गो थ्रू करना है, बिकॉज दिस इज द थ्योरम वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रूफ। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो एक एग्जांपल के साथ करते हैं। हमारे पास है सपोज 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36। अब मैं जानती हूँ कि जो 2 है, 2 डिवाइड करता है 36 को, है ना, सभी को पता है 36 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 36 को डिवाइड करता है। अगर 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, सही बात है ना, 6 को भी करेगा। तो वही ये थ्योरम कहना चाह रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी करेगा। अगर वो a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, है ना। जैसे कि हमारे पास है कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 81। अब 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर है, वी नो दैट 3 डिवाइड्स 81। अब 3 81 को डिवाइड करता है तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है। 3 81 को डिवाइड करता है और 3 9 को भी डिवाइड करता है। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये कहना चाहती है ये वाली थ्योरम, थ्योरम 1.2। इस थ्योरम का यूज करके हम थ्योरम 1.3 प्रूव करेंगे कि √2 इज इरेशनल। इसका एक बड़ा सा प्रोसेस है, उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है, उसे आप बिल्कुल देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज देती हूँ। बाकी इस थ्योरम को आप याद रखिए, क्योंकि इसी थ्योरम का यूज करके हम बाकी के क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। Hello dear students, welcome to my class. We are doing chapter 1 maths class 10 NCERT real numbers. We have already completed exercise 1.1. Before starting exercise 1.2, let's revisit irrational numbers. So what are irrational numbers? The numbers which are written in square roots, and you cannot take it out from the square roots, like √2. √2 is written as √2 only, you cannot take it out from √3. √4 is not an irrational number because √4 is 2. So √4 is equal to 2, its value is equal to whole number, its value is equal to an integer. So this is not a rational number. But √2, there is no integer for √2, √3, √15. So these are irrational numbers. If we talk about the decimal expansion, so that decimal expansion is non-terminating, non-repeating. For example, you can see here 0.101101110 means there is no pattern, and neither it's terminating. Neither it has some pattern or it is terminating. So these kind of decimal expansions come under irrational numbers. If we talk about pi, तो pi भी एक irrational number है, क्योंकि pi का अगर decimal expansion देखें तो 3.14, this is not the exact value of pi. इसके लिए कोई बड़ी सी value है जिसका कोई एंड नहीं है, वो टर्मिनेट नहीं होती। दिस इज जस्ट द राउंड ऑफ वैल्यू जो कि हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। वी आल्सो राइट पाई एज 22/7 व्हिच इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओरिजिनली पाई इज इरेशनल बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, तो वो कभी भी होल नंबर नहीं होता है। ओके, सो रिमेंबर दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। नाउ हाउ टू प्रूव वेदर अ नंबर इज इरेशनल और रेशनल? फॉर दैट we will use a theorem, theorem 1.2. Let p be a prime number if p divides a square, then p divides a where a is a positive integer. p कोई प्राइम नंबर है, p is a prime number, है ना। मान लो p कोई भी नंबर है, let us suppose 2. अब p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, like 2 divides 4 स्क्वायर। 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली 2 will divide 4. अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 2 अगर 16 को डिवाइड करता है तो उसके पहले वो 4 को डिवाइड करेगा इससे। तो दिस इज द थ्योरम, इसका हमें यूज करना है। जैसे हमारे पास है 36, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। अब 36 को मान लो एक नंबर है 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 डिवाइड्स 36, तो 3 शुड डिवाइड 6 आल्सो। सो यस, इट इज करेक्ट। अगर 3 36 को डिवाइड करता है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। वेयर p इज अ प्राइम नंबर, दिस शुड बी नोटिस कि p प्राइम नंबर होना चाहिए। p फिर कंपोजिट नंबर हुआ तो दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड। ठीक है, using this theorem we are going to prove √2 is irrational. Let us prove
that root 2 is irrational. Very easy process is there to prove root 2 is irrational number. Few statements you have to learn and you will get full marks to prove root 2 is irrational number. Now here we use the method of contradiction. Contradiction, opposite. हमें उल्टा सपोज करना है. इन्होंने बोला root 2 को irrational prove करो. You suppose that root 2 is rational number. Rational number मानकर इसको इसमें सारे rational number की definition लगा देंगे. Rational number की definition लगाते ही हमें कुछ opposite, कुछ contradict statement मिलेगी and we will say कि हमारा assumption तो गलत था. root 2 rational नहीं हो सकता. तो अगर root 2 rational नहीं है तो फिर उसे irrational होना पड़ेगा. तो हम इसे contradiction से prove कर रहे हैं, उल्टा मान लेते हैं. तो लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा? Let us divide the screen to two parts क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये. Suppose root 2 is a rational number. See, मेरे साथ इसको पहले समझना, उसके बाद इसको कॉपी डाउन करना. No one will copy down when I'm writing. तो थोड़ा सा अपना सारा जो कंसंट्रेशन है वो इसको समझने में लगाना है. हमने माना है कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है. हम रूट 2 की हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं. रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो p by q के फॉर्म में लिखे जाते हैं. अब हमने बोला कि रूट 2 रैशनल है, तो रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, वेयर हमने ये माना है कि p एंड q आर को प्राइम. p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. दे आर को प्राइम, यानी उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. को प्राइम मतलब इनका HCF 1 है. p और q दे आर नॉट शेयरिंग एनी कॉमन फैक्टर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने? q इज नॉट इक्वल टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. चलो ये तो हमने सपोज कर लिया. अब हम इसे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि रूट 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाए. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सी क्या मिलेगा? रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर. अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस. दिस यू डोंट हैव टू शो, ये क्रॉस शो मत किया करो. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना. हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट p square. 1 times p square is p square. 2 times q square is 2q square. p square equals to 2q square. अब अगर p square 2q square के इक्वल है तो p square तो कुछ 2 का मल्टीपल हुआ. जो p स्क्वायर है वो 2 टाइम्स q स्क्वायर. q स्क्वायर तो कुछ भी हो सकता है. अब q स्क्वायर में जब 2 का इंटू करेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक इवन नंबर होगा जो कि 2 का मल्टीपल होगा. तो p स्क्वायर इज 2 टाइम्स m. q स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हमने m मान लिया. m मानने का ये मतलब है कि 2 टाइम्स समथिंग. तो समथिंग को शो करने के लिए हम कुछ भी m n ऐसा यूज करते हैं. तो p स्क्वायर इज अ नंबर व्हिच इज ऑफ द काइंड 2 टाइम्स m. इसका मतलब p स्क्वायर तो इवन नंबर है. p स्क्वायर इवन नंबर हो गया. p स्क्वायर तो 2 का मल्टीपल है. दिस मींस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. 2 तो p स्क्वायर को डिवाइड करता है. अगर p स्क्वायर 2m है इसका मतलब 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. और अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि therefore 2 will divide p also. अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा. अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसे भी डिवाइड करेगा. 2 डिवाइड्स p. 2 p को डिवाइड करता है. इसका मतलब p क्या है? p कोई 2 का मल्टीपल है. नाउ आई एम यूजिंग n जस्ट टू शो कि डिफरेंट इंटीजर्स हैं. p भी 2 का ही मल्टीपल है तो p कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2n. Therefore p is of the kind p equals to 2n. Now let us suppose this is our equation 1. Now substitute this value of p in 1. Substitute p equals to 2n in equation 1. चलो रखते हैं p की जगह 2n को. तो 2n का स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. राइट, p की जगह हमने 2n रखा है. अब 2 का स्क्वायर होता है 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, you would get 2n square equals to q square. दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया. Now we got 2n square equals to q square. इसको थोड़ा सीधा लिखूं तो हम इसको ऐसा समझें कि q square जो है वो 2n square है. Now you can say q square is a multiple of 2 क्योंकि तो 2n square टाइप का हो गया. तो 2 times something, है ना, कुछ भी m n l ले लेती हूँ. q square is a kind of 2 times something, 2 times l. तो यहाँ पता चला कि जो q square है वो तो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 divides q square. Now you would say that therefore 2 divides q square. अब 2q स्क्वायर को डिवाइड करता है. अगेन बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स q. 2q को डिवाइड करता है. इसका मतलब q भी 2 का ही मल्टीपल है. q इज ऑफ द काइंड 2 टाइम्स समथिंग.
2 times L M N O P Q R, 2 times R. Q is of the kind 2 times R. तो Q भी 2 का मल्टीपल है और P भी 2 का ही मल्टीपल है. This implies Q is a multiple of 2R and P is also a multiple of 2. ये हमें पहले ही मिल गया था. अब देखो हमने शुरू में ही मान लिया था कि P और Q तो कोप्राइम है, यानी P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. जब P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर यहाँ पर 2 कॉमन कैसे आ गया? This is the contradiction, है ना? Therefore P and Q has, therefore न लिखिए, हम लिख देते हैं this implies, इसका मतलब है P and Q has 2 as its common factor. Therefore our supposition, हमने जो suppose किया था, our supposition that P and Q are co-prime, P and Q are co-prime is wrong. हमारा जो supposition है वो wrong है. This leads to contradiction. This leads to contradiction. This leads to contradiction. लास्ट में हम लिख देंगे therefore root 2 is an irrational number. ये सब लिखना पड़ता है हमें कि हमने जो सपोज किया था P और Q को प्राइम है वो गलत है, हमारा जो सपोजिशन है वो गलत निकला. दिस लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. At last you have to write therefore root 2 is an irrational number. Yes, root 2 is a irrational number. Right? Easy? Watch the video 2 or 3 times because ये चीज एक बार में लर्न नहीं होगी, but yes after watching it 2 or 3 times फिर करके भी देख लोगे तो it's very easy. Okay, I hope you understood. Okay, bye. Yes. So in the previous class, we proved root 2 is irrational. Now let's start example 5. Prove that root 3 is irrational. We'll do the same process. So it's for the second time we are doing the same process. So I hope learn हो जाएगा. First time में difficult लगा हो तो in second time it will be very easy. So let's start example 5. Okay, example 5. Prove that root 3 is irrational. तो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है कि हमें इसको उल्टा मानना है कि रूट 3 इरेशनल की जगह रेशनल है. लेट अस सपोज रूट 3 इज रेशनल. स्टार्ट. ओके, सो सपोज रूट 3 इज अ रेशनल नंबर. हमने ऐसा मान लिया कि जो रूट 3 है वो एक रेशनल नंबर है. रूट 3 इज अ रेशनल नंबर. अब अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो रूट 3 कैसा होगा? P by Q फॉर्म का, वेयर P and Q आर कोप्राइम, है ना, ये इंटीजर्स हैं और ये कोप्राइम है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना. हमने पहले मान लेना है कि ये रेशनल नंबर है, उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग करनी है. रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर. उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get 3Q square equals to P square, or you can write P square equals to 3Q square. P square जो है वो 3Q square है. यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P square equals to 3Q square. अब हमें यहाँ दिखा कि जो P square है is a multiple of 3. P square, क्योंकि P square तो 3 times Q square है तो ये तो 3 का मल्टीपल हुआ. P square is a multiple of 3, यानी कि P square, यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 divides P square. This means 3 divides P square, क्योंकि P square तो 3 का मल्टीपल है. P square is 3 times Q square. P square अगर 3 का मल्टीपल है इसका मतलब 3 जो है वो P square को डिवाइड करता है. फिर हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर 3 P square को डिवाइड करता है तो 3 divides P also. 3 ने P square को डिवाइड किया तो 3 P को भी डिवाइड करेगा. अगर 3 P को डिवाइड करता है तो P भी 3 का मल्टीपल है तो वी कैन राइट P इज समवॉट 3M काइंड ऑफ, है ना. P कैसा होगा? 3M काइंड ऑफ नंबर होगा. चलो ठीक है, अगर P 3M है तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं और ये जो वैल्यू है P equals to 3M, let's put P equals to 3M in equation 1. इसको हम इक्वेशन 1 में डाल के देखते हैं. तो P स्क्वायर यानी कि 3M का स्क्वायर equals to 3Q स्क्वायर. अब 3M का स्क्वायर यानी 3 का भी स्क्वायर और M का भी स्क्वायर.
3m square equals to 9m square equals to 3q square. Let's divide both sides by 3. तो हमें मिलेगा 3m square equals to q square. तो ये हो गया कि जो q square है वो 3m square है, यानी q square तो 3 का मल्टीपल है. Again we got the same thing. q square is a multiple of 3. अब अगर q square 3 का मल्टीपल है तो q square मीन्स जो 3 है वो q square को डिवाइड करता है. 3 divides q square. अगर 3 q square को डिवाइड करता है तो 3 should divide q also. तो 3 divides q. 3 अगर q को डिवाइड करता है तो q तो कुछ 3n टाइम का नंबर है ना, 3n, क्योंकि वो q जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो कुछ 3n टाइप का होगा. अब p भी 3m मतलब p भी 3 का मल्टीपल और q भी 3 का मल्टीपल. हमने तो माना था कि p और q को प्राइम है. यहां से हमें क्या मिला, therefore p and q have a common factor 3. इनका तो कॉमन फैक्टर निकल गया जो कि है 3. therefore our assumption, हमने जो ये अज्यूम किया था कि p और q को प्राइम है, our assumption p and q are co-prime proves wrong, है ना, वो तो गलत हो गया. दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस लीड्स टू अ कॉन्ट्रडिक्शन. therefore what you will say, root 3 is a, you will say root 3 is an irrational number. Root 3 is an irrational number. Okay, I hope it's clear. It's very easy. Second time किया तो easy लग रहा होगा. And you watch the video again and again. And also practice by writing. है ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिख लिख कर practice करो. This is very important question. Okay, you copy it down. I'm ending the session. Okay, bye. Okay, students, we finished example 5. Now let's start example 6. Show that 5 minus root 3 is irrational. 5 minus root 3 को irrational prove करना है. वैसे तो अगर एक रैशनल नंबर में irrational ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है. यहाँ हमें प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए हम वही मेथड कॉन्ट्रडिक्शन वाली फॉलो करेंगे. शो दैट 5 minus root 3 is irrational. It's very easy. Suppose 5 minus root 3 is a rational number. Let 5 minus root 3 is a rational number. जब भी इरेशनल प्रूव करना है तो याद कर लो हमें कॉन्ट्रडिक्शन वाली मेथड ही यूज करनी है. लेट 5 minus root 3 is a rational number. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम लिख सकते हैं a over b के फॉर्म में, यहाँ p over q जो भी लेना हो. वी वर टेकिंग p and q ना, चलो p और q ले लेते हैं. p और q के फॉर्म में, वेयर p and q are integers, p and q are co-prime integers. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ वेयर p and q are integers and q is not equal to. इतना करने के बाद यहाँ हमें कुछ भी स्क्वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है. जब इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें ऑलरेडी √3 आ रहा हो और हम √3 जानते हैं कि इरेशनल है ना, अब हमें √3 √2 को इरेशनल प्रूव नहीं करना है. अब हम ये जानते हैं क्योंकि अब 5 minus √3 आ गया तो वी हैव अ डिफरेंट टास्क टू डू. तो प्रीवियस टास्क जो हमने किया उसे हम अब मानेंगे कि वो होता है. तो नाउ नोइंग दैट √3 इज इरेशनल, वी आर प्रूविंग 5 minus √3 इज आल्सो इरेशनल. चलो इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यहाँ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करो. लेट्स डू दिस थिंग. 5 को मैं यहीं रख रही हूँ, p minus q को इधर लेकर आई. ट्रांसपोजिशन p अपॉन q, जो कि उस साइड है, राइट साइड, वो पॉजिटिव है, उसने अपनी साइड चेंज करी. तो जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है. साइड चेंज मीन साइन चेंज. तो p ओवर q जो है वो उस साइड जाके माइनस p ओवर q हो जाएगा. और ये जो माइनस √3 है ये राइट साइड आएगा तो ये प्लस √3 हो जाएगा. दोनों ने अपनी साइड चेंज की है इसीलिए दोनों का साइन चेंज हो गया. इसका मतलब ये पूरा पार्ट √3 के इक्वल है. चलो यहाँ हम लेते हैं एलसीएम. 1 और q का एलसीएम होगा q, है ना. 1 और q का एलसीएम q. अब इसको q बनाने के लिए इसमें हमें q का मल्टीप्लाई करना है. डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए. तो ये हो जाएगा 5q minus p equals to √3. अब एक बात बताओ, p और q तो इंटीजर्स हैं, q 0 के इक्वल भी नहीं है. p और q अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, है ना. यहाँ हम लिखेंगे सिंस p and q are integers. अब तुम किसी इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट इंटीजर ना. यू विल नॉट गेट इरेशनल नंबर कि हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हो और हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा. सिंस p and q are integers, therefore 5q minus p is also an integer. ये भी एक इंटीजर होगा. अगर 5q minus p इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, q तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो हम कहेंगे कि 5q minus p over q जो है ये तो p by q फॉर्म का हो गया. तो दिस इज अ रेशनल नंबर. ये तो एक रेशनल नंबर हुआ, बट दैट इज इक्वल टू √3. दिस मेक्स √3 rational.
दिस मीन्स √3 इज रैशनल, क्योंकि रैशनल तो रैशनल के इक्वल होगा। 5q माइनस पी अपॉन क्यू जो है वो √3 के इक्वल है, और ये अगर रैशनल है तो वो जिसके इक्वल है वो भी रैशनल होगा। दिस मीन्स √3 इज अ रैशनल नंबर। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, अगेन हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि √3 रैशनल है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। आखिर में हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। गॉट? क्या करना है, इरेशनल प्रूव करने के लिए रैशनल लिख देना है। रैशनल अगर हमने माना है तो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि दैट नंबर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। पी अपॉन क्यू के इक्वल लिख के हमको √3 को एक साइड रख के बाकी सबको एक साइड लिख देना है, और फिर एलसीएम लेके हमने जो मिला है नंबर उसे बताना है कि ये तो रैशनल है। अब रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, या तो √3 रैशनल हो, बट √3 तो रैशनल नहीं है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। Okay, this was example 6. Now let's do example 7, which is of the same kind. ये भी बिल्कुल सेम है। Show that 3√2 is irrational. अब 3√2 irrational है। Again, let us suppose 3√2 is a rational number. इसे हमने रैशनल मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो अब तो याद ही हो गई होगी प्रोसेस, ये रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये भी याद हो गया होगा कि जब भी हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये भी बताते हैं पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमें ना रूट को एक जगह लिखना रहता है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में √3 को एक साइड लिखा था, जो भी रेशनल पार्ट है उसको हम एक साइड कर देते हैं, क्योंकि √2 और √3 हम ऑलरेडी जानते हैं रेशनल है, तो उसको हमने एक साइड कर दिया। दैट मींस यू आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 इधर नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो √2 इक्वल्स टू पी अपॉन 3q, है ना, दोनों साइड 3 से डिवाइड हुआ, तो यहाँ बचा √2, यहाँ पर आ गया पी अपॉन 3q। अगेन सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, अगर पी और क्यू इंटीजर्स हैं तो फिर 3q भी तो इंटीजर हुआ। अगर पी एंड क्यू आर इंटीजर तो 3 तो इंटीजर होता ही है, तो 3q इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, और क्यू 0 नहीं है, है ना, तो पी अपॉन 3q दोनों इंटीजर हैं। तो इससे ये पता चला कि जो पी अपॉन 3q है वो तो रैशनल नंबर है। दिस मीन्स √2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये तो √2 के इक्वल है। दिस मीन्स √2 इज अ रैशनल नंबर। द कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड भी लिख देते हो ना तो लाइक लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है ना। दिस इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो लास्ट में जरूर लिखना दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। वेरी इजी। पहले रैशनल सपोज करो, पी बाई क्यू के इक्वल रखो, इरेशनल नंबर को एक साइड रख के सारे रैशनल सारे इंटीजर्स एक साइड मूव करा दो बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी वहां बनता है। फिर जो हमें मिलेगा वो एक रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक, so we have to start now exercise 1.2. You practice all the examples. We'll start exercise 1.2 in the next video. Okay, till then, bye bye. Hello, dear students. We completed example 6 yesterday. Now let's start example 7. Show that 3√2 is irrational. 3√2 को irrational prove करना है. Again, the method of contradiction we are going to use. 3√2 is irrational. अब irrational prove करने के लिए let us suppose that 3√2 is a rational number. हमने 3√2 को rational suppose कर लिया. 3√2 को रैशनल सपोज करने के बाद हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाएंगे कि अगर 3√2 रैशनल नंबर है, इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, right, and q is not equal to 0. उसके बाद क्या बताया था कि जो इरेशनल नंबर है जिसे हम जानते हैं, लाइक वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसको एक साइड ही छोड़ दो, √2 डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो ये हो जाएगा p over 3q, p upon 3q. अब देखो p इंटीजर है, q इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो इंटीजर्स से जो बनता है फ्रैक्शन वो रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब p अपॉन 3q ये तो एक रैशनल नंबर है और ये √2 के इक्वल है, तो √2 भी रैशनल नंबर है। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, √2 तो इरेशनल नंबर है। दिस मींस 3√2 इज इरेशनल।
रेशनल मान के कोई कॉन्ट्रडिक्शन ले आना है और कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो जो हमने सपोज किया था वो गलत है, इसका मतलब 3√2 इरेशनल ही होगा। तो अभी हमने √2 को यहाँ रखा है, 3 को नीचे भेज दिया, p/3q। नाउ विल राइट सिंस p, 3 एंड q आर इंटीजर्स, ये तो इंटीजर्स है, देयरफॉर p/3q इज अ रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज √2 इज अ रेशनल नंबर। इससे तो ये पता चला कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, किस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। देयरफॉर 3√2 इज irrational। ठीक है, वेरी इजी। So we have completed all the examples. Now you have to try exercise 1.2. All the questions are same. सब में यही prove करना है. In all the questions you have to do the same thing. Okay, let's meet in the next video. Till then, bye. Yes, let's start exercise 1.2. We completed all the examples. Now let's start exercise 1.2, chapter 1, real numbers. Question 1. Prove that √5 is irrational. We have already done √2 is irrational, √3 is irrational. Okay. I'll share the link in description box for √2 and √3, and the similar process we are going to use for √5. So let's start proving √5 is irrational. जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं दे मस्ट बी नोइंग कि क्या स्टेप्स है हमारे। थोड़ा सा ये लेंदी जाता है बट इट्स वेरी सिंपल। ओके, स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इसे ये सपोज कर लेते हैं कि ये रेशनल है। उल्टा हमें सपोज करना है, लेट √5 इज रेशनल। इफ √5 इज रेशनल, तो रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, वेयर, अच्छा इस क्वेश्चन में ये लिखना बहुत जरूरी है, वेयर p q आर को प्राइम। इंटीजर्स तो ये हैं ही सही, बट दे आर को प्राइम। यू कैन ऑल्सो राइट दे आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q is not equal to 0। well को प्राइम लिखा तो वो इंटीजर्स हो ही गए, so need not write, तो where p q are को प्राइम and q is not equal to 0। ये तो हमने रेशनल नंबर की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस स्क्वायरिंग का है, ये हमें याद रखना है। √2, √3, √5, √7 जो सिंगल नंबर्स हैं उसमें हम रेशनल मानने के बाद स्क्वायरिंग करते हैं। दोनों साइड पर स्क्वायरिंग की। √5 का स्क्वायर होता है 5, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। उसके बाद अगर याद हो तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये q² 5 के पास चला जाएगा तो 5q²। अब यहां से एक बात पता चली कि जो p² है वो तो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि p² है 5 टाइम्स q²। सो p² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। p² अगर 5 का मल्टीपल है इसका मतलब 5 डिवाइड्स p²। 5 p² को डिवाइड करता है, तो फिर 5p को भी डिवाइड करेगा। दिस वाज द थ्योरम। हमने ये थ्योरम भी डिस्कस की है प्रीवियस वीडियोस में कि अगर कोई प्राइम नंबर p² को डिवाइड करता है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स p। अब अगर 5p को डिवाइड करता है तो p इज अ नंबर व्हिच इज ऑफ द काइंड 5 टाइम्स m, कुछ वो 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि 5p को डिवाइड करता है, यानी p इज डिवाइडेड बाय 5, p इज डिविजिबल बाय 5। p को अगर 5 डिवाइड कर पाता है इसका मतलब p जो है वो 5 का कोई मल्टीपल है, तो p इज ऑफ द काइंड 5m। चलो अगर p 5m काइंड का है तो इसको भी स्क्वायरिंग कर देते हैं हम। p² नो p इक्वल्स टू 5m, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ इक्वेशन 1 में। पुट p इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में चलो और इसको हम p इक्वल्स टू 5m पुट कर देते हैं। 5m² इक्वल्स टू 5q²। अब 5m² मतलब 25m², 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m², and this is 5q²। Divide both sides by 5, you would get 5m² equals to q²। मतलब कि जो q² है वो तो 5m² है। इससे तो ये पता चला कि जो q² है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5q²। 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 डिवाइड्स q²। 5q² को डिवाइड करता है। अगेन बाय थ्योरम, अगर 5q² को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, और अगर 5q को डिवाइड करता है तो q इज 5n काइंड ऑफ, क्योंकि अगर 5q को डिवाइड कर रहा है, q अगर 5 का मल्टीपल है तो q कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स समथिंग, q इज इक्वल टू 5n। अब इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ बोला कि p जो है वो 5 का मल्टीपल है, यस, और q भी जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो p और q कोप्राइम कहाँ हुए? p और q का तो HCF आ गया 5। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है?
the contradiction is, like, we can write this means P and Q have a common factor 5. P और Q का एक common factor है जो कि है 5. Therefore, P and Q are not co-prime. नहीं, ये तो contradiction है. This means P and Q have a common factor 5. This is a contradiction. This is a contradiction. Therefore, P and Q are not co-prime. Therefore, root 5 is irrational. हमने जो सपोज किया था कि root 5 रैशनल है वो तो गलत साबित हो गया, है ना? क्या हुआ? हमने बोला था कि जो P और Q है वो को प्राइम है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें तो ये पता चला कि P और Q के अंदर एक कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है. अब अगर कॉमन फैक्टर उनका 5 है तो वो को प्राइम नहीं है, जबकि हमने माना था कि वो को प्राइम है. This is a contradiction and therefore our supposition is wrong. Therefore, root 5 is irrational. That's it. You can copy it down. I hope it's clear. Now I'll start question number 2. Exercise 1.2, question number 2. Question 1 we have already done. Now let's come to question number 2. Prove that 3 plus root 2 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. I hope अब तो learn ही हो गया होगा क्या करना है. Let's start. 3 plus 2 root 5 is irrational. Let us suppose 3 plus 2 root 5 is rational. ठीक है, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये रैशनल है. अगर ये रैशनल है तो 3 plus 2 root 5 is equal to P over Q, क्योंकि रैशनल नंबर तो P by Q फॉर्म में होता है, where P and Q are integers. P and Q are integers, correct? Where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ऐसा करने के बाद हमें इरेशनल नंबर को एक साइड रख देना है और जितने भी इंटीजर्स हैं उनको एक साइड कर देंगे. तो 2 रूट 5 को यहीं रहना है एंड P by Q minus 3, ये जो 3 है इसको हमने उधर किया. Why we want to isolate root 5? रूट 5 को हम एक साइड रखना चाहते हैं. तो पहले ये 3 उधर गया, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके. Q और 1 का एलसीएम होता है Q. P minus 1 में Q का मल्टीप्लीकेशन होगा टू मेक इट सेम, तो ये हो जाएगा P minus 3Q. अब हमें रूट 5 को आइसोलेट करना है तो ये 2 भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया P minus 3Q अपॉन 2Q. अब देखो राइट साइड देखो इसका क्या है, P है, Q 3 2, दे ऑल आर इंटीजर्स. इन इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो होता है रैशनल नंबर. तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस 2 3 P Q आर इंटीजर्स, है ना, ये सब क्या है, इंटीजर्स है. और अगर ये सब इंटीजर्स हैं तो P minus 3Q अपॉन 2Q क्या होगा, ये तो एक रैशनल नंबर होगा. दिस मीन्स रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, है ना. इससे तो ये हुआ कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. ये फैक्ट हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. That's all. पहले रैशनल सपोज करो, इक्वल्स टू P by Q लिखो, P by Q को P and Q को इंटीजर्स बताओ. उसके बाद जो इरेशनल नंबर है लाइक रूट 2 रूट 5 रूट 3 जो भी है उसको एक साइड रख के बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो, और जो आएगा राइट साइड में वो सब इंटीजर्स होंगे और इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है रैशनल नंबर. बट अ रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर. ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. दिस मींस जो हमने सपोज किया है वो गलत है. हमने क्या सपोज किया है, 3 plus 2 root 5 इज रैशनल. ये चीज गलत है. तो फिर क्या सही है कि 3 plus 2 root 5 है वो इरेशनल. वेरी सिंपल. Exercise 1.2, last question, question number 3. Last question of this exercise and last question of this chapter. Prove that the following are irrational. सब में वही बात करनी है, equals to P by Q. तो बहुत ही जल्दी हम इन तीनों क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं. जिन्होंने खुद कर लिया है लेकिन चेक कि वो सही कर रहे हैं या नहीं. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1 by root 2, 1 upon root 2. चलो इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है. सो लेट 1 by root 2, मेरे साथ ही करते जाइए, अब तो सबको लर्न हो गया. लेट 1 by 2 1 by root 2 इज अ रैशनल नंबर. ऐसा करके क्या करते हैं,
1 by root 2 is equal to P over Q, where P and Q are integers. उसके बाद रूट 2 को एक जगह छोड़ना है और बाकी को ऊपर नीचे कर देना है. अच्छा, वेयर Q is not equal to 0 is important. अच्छा, यहाँ हमको रूट 2 को एक जगह रखना है, तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. Q is equal to P रूट 2, Q अपॉन P इक्वल्स टू रूट 2. अब P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं. अब P and Q are integers, तो Q upon P is also a rational number. Q upon P is a rational number for P not equal to 0. Guys, this is very important कि जो P है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन लिखी थी रैशनल नंबर की, तो हमने कहा कि P और Q इंटीजर्स है और Q 0 के इक्वल नहीं है. अब जब ये फ्लिप हो चुका है, रेसिप्रोकल हो चुका है, तो यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि P 0 नहीं है. P अगर 0 होगा तो पूरा केस हमारा फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि द नंबर विल गो नॉट डिफाइंड. तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे बस कि P इज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा, Q अपॉन P इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि P और Q तो इंटीजर्स है. अब P अपॉन Q अगर रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. नाउ मुझे लगता है ये स्टेटमेंट्स भी लर्न हो गई होंगी. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज irrational. Therefore, 1 upon root 2 is irrational. Okay, note down fast. We'll start second question, 7 root 5. Same. मैं इसी में changes कर दूंगी ताकि बहुत सारा हमें लिखना ना पड़े, है ना? You guys note down fast. I'm making changes in the same question. 1 by root 2 is rational लिखा था हमने. अब हमारा जो question है वो 7 root 5 हो चुका है. तो let 7 root 5 is a rational number. और अगर ये rational number है तो it must be of the form P by Q. तो 7 root 5 P upon Q फॉर्म का होगा. उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. तो रूट 5 को हमने यहीं रखना है. दिस 7 विल गो डाउन, राइट. 7 यहाँ आ गया, तो हमारे पास आ गया रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन 7Q. नाउ सिंस P, Q एंड 7 ये तीनों क्या है? ये तीनों इंटीजर्स हैं. अगर ये तीनों इंटीजर्स हैं तो P अपॉन 7Q क्या है? दिस इज अ रैशनल नंबर. दिस इज अ रैशनल नंबर. और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल्स टू में क्या है? रूट 5. इक्वल्स टू में लिखा हुआ है रूट 5. अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल्स टू में जो रूट 5 है वो भी रैशनल हुआ. एंड दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इररेशनल. हमें तो पता है कि रूट 5 इररेशनल होता है, बट जब हमने 7 रूट 5 को रैशनल माना तो हमें ये मिल रहा है कि जो रूट 5 है वो रैशनल है. तो ये तो गलत चीज है. रूट 5 तो इररेशनल होता है. इसका मतलब कि जो 7 रूट 5 है वो इररेशनल है. हाउ इजी. लास्ट क्वेश्चन, 6 प्लस रूट 2 करना, उसमें भी यही सब है.